بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ صحت سہولیات میں بہتری کا مشن وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں خصوصی اجلاس، ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن سمیت 43 ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری سطح پر کینسر کے 2 ہسپتال آپریشنل کیے جائیں گے۔ چلڈرن نشتر 2 اور ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں خصوصی اجلاس، ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن سمیت 43 ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری سطح پر کینسر کے 2 ہسپتال آپریشن کیے جائیں گے، جبکہ چلڈرن نشتر 2 اور ڈی جے خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کے اسموک کے تدارک کے لیے اقدامات۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے تعلیمی اداروں میں جمعے اور ہفتے کی اضافی چھٹی دینے کا اعلان کر دیا، لیکن پنجاب بھر میں وفاقی تعلیمی اداروں کے طلبہ کو اضافی چھٹیاں نہ مل سکی۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت کے اسموک کے تدارک کے لیے اقدامات۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے تعلیمی اداروں میں جمعے اور ہفتے کی اضافی چھٹی کا اعلان تو کیا، لیکن پنجاب بھر میں وفاقی تعلیمی اداروں کے طلبہ کو اضافی چھٹیاں نہ مل سکی۔ اسموگ سے نمٹنے کے لیے پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں ہفتہ وار اضافی چھٹیاں دے دی گئیں، لیکن وفاقی تعلیمی اداروں کے طلباء کو اضافی چھٹیاں نہیں مل سکیں۔ فیڈرل سکولز میں جمعے کو معمول کے مطابق تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اسموگ کی وجہ سے طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جب طبیعت خراب ہوگی تو پھر پڑھا نہیں جائے گا، پھر رکاوٹ پڑھائی میں ہمارے پیپر ہو رہے ہیں اس پر اسکول میں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری بھی چھٹی ہو اور اسکولوں میں بھی چھٹی ہے، اور ہماری اسموگ ہوتی ہے صبح جب ہم آتے ہیں، لیکن ہماری چھٹی نہیں ہوتی اسکول کی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ پنجاب کی طرح وفاقی تعلیمی اداروں میں بھی چھٹیاں ہونی چاہیے۔ صبح کے وقت شدید اسموگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسکول آنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اسموگ کی وجہ سے صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ طبیعت بھی بہت خراب ہو رہی ہے اور پیپر بھی ہمارے شروع ہیں، اگر طبیعت خراب ہے تو پیپر نہیں دے سکتے۔ طلباء طالبات نے مطالبہ کیا ہے کہ اسموگ کی وجہ سے وفاقی تعلیمی اداروں میں بھی چھٹیاں دی جائیں۔ کیمرہ مین حسیب کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ اسموک کے تدارک کے لیے حکومت پنجاب کے احکامات پر انتظامیہ عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ دنیا پور کے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ تعلیمی ادارے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے، بچے بغیر ماسک اسکول جانے لگے۔ ادھر میاں چنو کے تاجروں نے حکومتی اعلان کے باوجود آج معمول کے مطابق دکانیں کھول لی۔ کہتے ہیں خراب معاشی حالات کے باعث دکانیں بند نہیں کر سکتے۔ اسموگ سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کا احسن اقدام۔ پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں جمعہ اور ہفتہ کی اضافی چھٹی کا اعلان۔ دنیا پور میں اسموگ کی وجہ سے لوگ گلے، سانس اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر سکول جانے والے بچے اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی واضح ہدایات کے باوجود دنیا پور اور گرد و نواح کے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بغیر ماسک سکول آتے دکھائی دیتے ہیں۔ انتظامیہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروائے تو بہت سے بچوں کو اسموگ سے پیدا ہونے والے امراض سے بچایا جا سکتا ہے۔ میاں چنو میں بھی انتظامیہ سافٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے۔ پنجاب حکومت کے اعلان کے مطابق ملتان سمیت 6 ڈویژنوں میں جمعہ اور ہفتہ کو مارکیٹیں 3 بجے کے بعد کھولنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ میاں چنو اور اس کے نواحی علاقوں میں آج کاروباری مراکز معمول کے مطابق کھل گئے۔ کاروباری حضرات نے نگران حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کاروبار بند ہوئے کتوں بچیاں نوں کھوائیے، بچیاں نوں کھوا کدھر جائیے؟ غریب آدمی ہیں، دیہڑی دار بندے ہیں، کی کریے؟ غریب آدمی ہے کہ حکومت نے غلط فیصلہ دیتا ہے بھی غریب آدمی کا یہ تینوں اجے تک بند رہے۔ بہت زیادہ مشکلات ہیں، اتنی زیادہ ٹینشن ہے، سوچ سے بھی زیادہ۔ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنے پریشان ہیں، پہلے بھی بہت پریشان ہیں، اب یہ چھٹیاں ہو رہی ہیں اور بچوں کی ٹینشن اور یہ اوپر سے کاروبار بند کرنا ہمارے لیے تو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ پنجاب بھر میں اسموگ کی خراب صورتحال سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بطور ذمہ دار شہری ہم سب کا فرض ہے کہ اسموگ کے تدارک کے لیے حکومتی فیصلوں پر عمل کریں تاکہ اس مسئلے سے جان چھوٹ سکے۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا جینا کیا محال۔ گراں فروشی کی وجہ سے اشیاء خورونوش کی سرکاری اور مارکیٹ قیمتوں میں تصاعد آ گیا۔ دال، چاول، آٹا، انڈے، دودھ اور دہی مہنگے داموں فروخت ہونے لگے، جس کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ گراں فروشی کی وجہ سے اشیاء خورونوش کی سرکاری اور
मार्केट कीमों में तसाद आ गया। दाल, चावल, आटा, अंडे, दूध और दही महंगे दामों फरोख्त होने लगे। महंगाई, हाय महंगाई, गरीब आवाम की दुहाई। जनूबी पंजाब भर में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहर शहर मार्केटों में सरकारी रेट लिस्टें मजाक बनकर रह गई हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद करने में मुकम्मल नाकाम है। जबकि एक तरफ शहरी महंगाई का रोना रोते हैं तो दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं कि अखराजात पूरे नहीं होते, नुकसान में अशिया फरोख्त नहीं कर सकते। जनूबी पंजाब भर में अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मार्केटों में सरकारी रेट लिस्टें मजाक बनकर रह गई। रहीम यार खान के जिले में 36 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात हैं, मगर सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हैं। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। दूध 110 की बजाय 130 रुपए, दही 120 की बजाय 180 रुपए और छोटा गोश्त 1200 की बजाय 1500 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। बहावलपुर में इंतजामिया के दामों के बावजूद गिरां फरोशी अरूज पर है। दुकानदारों का सरकारी रेट पर अशिया खुरनोश फरोख्त करने से साफ इनकार। कहते हैं होलसेल में निर्ख रोजाना की बुनियाद पर तब्दील हो रहे हैं, अखराजात पूरे नहीं होते, नुकसान में अशिया फरोख्त नहीं कर सकते। शहर में चिकन मुकर्रा निर्ख से 40 रुपए जबकि दालें 30 से 50 रुपए जायद पर फरोख्त की जा रही हैं। उधर मियां वाली के शहरी दूध दही की कीमतों से परेशान हैं। कहते हैं दूध 140 और दही 150 रुपए फी किलो खरीदना मुश्किल है। कीमतें कम होने से नुकसान हो रहा है। दूध महंगा खरीद रहे हैं, सस्ता कैसे फरोख्त करें? कारोबार बंद नहीं कर सकते वरना दूध दही का काम मुश्किल हो गया है। मुजफ्फरगढ़ में चीनी के बाद अब घी और दूध की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। अव्वल दर्जे का घी 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। गुज़िश्ता हफ्ते में दूध की कीमत में भी 20 रुपए का इजाफा हुआ है। शहरी कहते हैं कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं होता। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील कर दी। डेरा गाजी खान में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने के बराबर है। तमाम अशिया सरकारी रेट लिस्ट से 20 से 40 रुपए महंगी फरोख्त की जा रही हैं। दुकानदारों का मौकफ है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आकर चालान कर जाते हैं, बड़े डीलरों पर कोई हाथ नहीं डालता। माल पीछे से महंगा मिलता है, किस तरह सस्ता फरोख्त करें? मार्केटों में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करके सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि शहरियों को माफिया के हाथों लुटने से बचाया जा सके। बहावलपुर के शाहराहों पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए आगाही मुहिम का आगाज हो गया। आगाही मुहिम में ट्रैफिक पुलिस के साथ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस भी हिस्सा ले रही है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी सबकी जिम्मेदारी। बहावलपुर शहर के बाईपास और हाईवेज को भी महफूज बनाने का अमल जारी। कौमी शाहराहों पर पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। कम उम्र ड्राइवर्स की हौसला शिकनी के साथ उनके वालिदैन से बयान हल्फी लिए जा रहे हैं, जबकि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान भी किए जा रहे हैं। हेलमेट नहीं पहना होता, जैसे हैवी ट्रैफिक है, इनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, स्मोक पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा ओवरलोड होते हैं ज़्यादा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मुहिम के बाद अंडर एज हेलमेट और धुआं छोड़ने बहुत कम हो गई। ऑलमोस्ट ये 80 से 70% जो कमी आ गई है। शहर के अतराफ बाईपास पर बड़ी गाड़ियों से ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। हैवी ट्रैफिक के दबाव की वजह से हादसात होते हैं। कौमी शाहराहों पर ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार हादसात की जद में आते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों का कहना था कि शहर के अतराफ आगाही मुहिम के जरिए 80% तक हादसात पर काबू पा लिया है। जो छोटे बच्चे हैं, अंडर एज स्पेशली स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, वो बाइक चलाते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं ना, वो हेलमेट नहीं पहनते, जो ही एक्सीडेंट होते हैं हेड इंजरी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगर हेलमेट पहना हो, एक्सीडेंट में हेड इंजरी नहीं होती, वो बच जाते हैं। अदरवाइज बाकी जो छोटी मोटी चोटें आती कवर हो जाती हैं, हेड इंजरी कवर नहीं होती। बहावलपुर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात लम्हा फिक्रियां हैं। शहरी कौमी शाहराहों को महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियांवाली की सियासत में बड़ी हलचल। नवाब ऑफ कालाबाग ग्रुप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नवाबजादा अमीर मोहम्मद खान NA 89 और नवाबजादा मलिक मुजम्मिल खान PP 85 से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब ऑफ कालाबाग मलिक वहीद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनके बेटे नवाबजादा अमीर मोहम्मद खान NA 89 और नवाबजादा मलिक मुजम्मिल खान PP 85 से इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों नवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उनका सियासी इत्तेहाद रोखड़ी ग्रुप के साथ है। जी, हमारा रोखड़ी ग्रुप के साथ इलाक है जी। वो PP 86 में हम आदिल अब्दुल्ला खान को सपोर्ट कर रहे हैं और वो NA 89 में हमें सपोर्ट कर रहे हैं जी। NA 89 के उम्मीदवार नवाबजादा मलिक अमीर मोहम्मद खान का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की बका है, कामयाब होकर हल्के के अवाम की खिदमत करेंगे।
हम भी तंग आ चुके हैं और हमारे लोग भी तंग आ चुके हैं वही बातें, वही पुराने वादे सुन सुन के। और बहुत अरसे से कोई ना कोई आता है, यहाँ से वोट ले जाता है और एंड में हम वैसे ही रुल रहे होते हैं। अब हम भी तंग आ चुके हैं ये बातें सुन सुन के कि डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, खास तौर पे हमारा हल्का NA89 जो है वो एक पासमानदा इलाका है। अब हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह वो दिन आए कि कोई ये ना कह सके कि NA89 ये डिस्ट्रिक्ट मियांवाली पासमानदा इलाका है। PP85 के उम्मीदवार नवाबजादा मलिक मुजम्मिल खान का कहना था कि उनके हलके में पीने के साफ पानी और नौजवानों के मसाइल हैं। कामयाबी के बाद ये मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। अल्लाह ने मौका दिया और अगर अवाम ने चाहा तो इंशाअल्लाह सबसे पहले हमारा यही मौक़िफ़ है कि हम बुनियादी मसले हल करें। एक दफ़ा जब बुनियादी मसले हल हो जाएंगे उसके बाद और उसके साथ साथ हम बाकी तरक्याती काम भी करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कालाबाग के नवाबों ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात भी दिए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियावाली। डेरा गाजी खान में सेहत के शोबे से अच्छी खबर। इलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल में न्यूरो सर्जरी ICU वार्ड कायम कर दिया गया, जबकि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी और MS डॉक्टर साइमा बतूल ने 9 बेड्स पर मुश्तमिल ICU वार्ड का इफ्तिताह किया। डेरा गाजी खान के अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल में न्यूरो सर्जरी ICU वार्ड कायम। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी और MS डॉक्टर साइमा बतूल ने 9 बेड्स पर मुश्तमिल ICU वार्ड का इफ्तिताह किया। इस मौका पर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अताउर रहमान खान बुजदार, डॉक्टर शौकत समेत दीगर डॉक्टर, स्टाफ और नर्सेज भी मौजूद थीं। प्रिंसिपल डॉक्टर आसिफ कुरैशी का कहना था कि अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल में तमाम किस्म की न्यूरो सर्जरी की जा रही है। ICU में तमाम जदीद मशीनरी मौजूद है। DG खान टीचिंग हस्पताल, अलामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल में आपके इल्म में भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किस्म की न्यूरो सर्जरी हो रही है और ख़ास तौर पे हमारे जो एमरजेंसी सर्जरी, यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड इंजरी के मरीज़ आते हैं, तो उनको ऑपरेशन के बाद ये लाजिम व मलजूम है अब न्यूरो सर्जरी और ICU होना। तो पहले वहाँ पे सेंट्रल ICU में मैनेज होते थे पेशेंट, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 9 बेड्स का वार्ड हमने बनाया है। इसमें ज़्यादातर एफर्ट न्यूरो सर्जरी के अपने डॉक्टर्स की है। यहाँ पे MS अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल डॉक्टर साइमा बतूल ने कहा, न्यूरो ICU यहाँ बनाया जाने वाला पंजाब का वाहिद ICU है। ICU वार्ड बनने से रेफरल रेट बहुत कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एफर्ट है जो हमारी सर्जरी के पेशेंट है उनको ऑपरेशन के बाद और ट्रॉमा के पेशेंट्स के लिए। ये न्यूरो सर्जरी के वार्ड में हमारे पास सारी सहूलियात मौजूद हैं, ऑक्सीजन की, ICP मॉनिटरिंग की, EEG की, वेंट्स की, और जो वक्त पे इनका जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो सहूलत भी मौजूद होगी और ये बहुत बड़ी एक नेमत है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी डॉक्टर अताउर रहमान बुजदार का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर MS और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के शुक्रगुजार हैं। अस्पताल में मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात मुहैया कर रही हैं। किस्म की सहूलत मौजूद है, जैसे सर ने बताया और मैडम साहब ने बताया। ICP मॉनिटर हैं, EEG है और वेंट हमारे पास हैं, तो इससे पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट काफ़ी कम हो जाएगा। मैं इस सिलसिले में मशकूर हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रिंसिपल साहब का, MS साहब का, तो उन्होंने हमें सहूलतें मुहैया की। और मैं अपने स्टाफ नर्सेज का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको रीएस्टेब्लिश किया, हमारी बहुत हेल्प की। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और MS अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल का मजीद कहना था कि ICU में वेंटिलेटर समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ 27 नवंबर से होगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर ने डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जिला इंतजामिया पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। जिला में 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इंसदाद पोलियो मुहिम 27 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी, MS डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल डॉक्टर साइमा इरम और महकमा सेहत हुक्काम समेत वालिदैन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम में 10 लाख से जायद कमसुन बच्चियों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुल्तान में जो हमारे टारगेट है 10 लाख बच्चों का है और उसके लिए हमारी 4380 टीमों की तश्कील दी गई है। तो इंशाल्लाह लास्ट टाइम भी जो हमारी अक्टूबर में NID की हुई उसमें भी हमारी प्रोग्रेस 100% रही है और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि तमाम बच्चों को, कोई भी बच्चा मिस ना हो, तमाम बच्चों को 1 से लेकर 5 साल तक बच्चों को
पोलियो के कतरे उनको पिलाई जाए। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 3980 मोबाइल टीमें घरों और अवामी मकामात पर ड्यूटी सर अंजाम देंगी। तमाम जिली महकमों और पुलिस को इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब बनाने का टास्क दिया गया है। डॉक्टर से कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो मुहिम के कतरे जरूर पिलाएं। मेरी आवाम से इल्तमास है कि 2 कतरे पोलियो के अपने बच्चों को पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक पिला के माजूरी से बचाएं और सेहत को प्रमोट करें और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाएं। इंसदाद पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे ना पिलवाने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। अब आपको बताया, मुल्की ज़राअत में गंदम की फसल को बहुत अहमियत हासिल है। इस वक्त गंदम की काश्त का अमल जारी है। जहानिया समेत जनूबी पंजाब भर में गंदम की काश्त का हदफ 64,07,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है। इस रकबे पर काश्त गंदम से 1,51,51,000 टन पैदावार हासिल की जा सकेगी। जहानिया में वसी पैमाने पर गंदम की काश्त का अमल जारी। ज़री तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादर चट्ठा ने फील्ड फार्मेशियंस को खुसूसी टास्क सौंप दिया। इस दफा गंदम दरामद नहीं बल्कि बरामद के स्लोगन के साथ हम फील्ड में उतरे हैं। जहां तक हदफ का तल्लक है, जनूबी पंजाब में 64 लाख एकड़ रकबे पर जो है गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिससे 1,51,00,000 एकड़ के टन के करीब पैदावार हासिल होने की तवक्को है, जिसके लिए सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादर चट्ठा साहब ने हमारी फील्ड फार्मेशंस को हदायत जारी की हैं कि वो काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई के सिलसिला में उनके शाना बशाना खड़े हों, उनको बर वक्त रहनुमाई फराम करें। काश्तकारों से यही कहा जा रहा है कि इस स्टेज पर 50 किलोग्राम बीज जो है वो फी एकड़ इस्तेमाल करें और फास्फोरस और पोटाश खादों का इस्तेमाल ज़रूर करें, यानी खादों का मुतनासब और मतवाजन इस्तेमाल करें। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब ने मुतलका फील्ड फार्मेशंस को हदायत जारी किया है कि वो काश्तकारों की फनी रहनुमाई के सिलसिले में जारी सरगर्मियों में मजीद बेहतरी लाएं। मार्केटों में मियारी ज़री मुदाखल की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जाए, ताकि गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा यकीनी बनाकर मतलूबा अहदाफ हासिल किए जा सकें। रवां साल जनूबी पंजाब में गंदम की फी एकड़ औसत पैदावार का हदफ 44 मन फी एकड़ मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादर चट्ठा सूबा में जारी फील्ड सरगर्मियों का जायजा लेने और मॉनिटरिंग के लिए तहसील, जिला और डिवीजन की सतह पर मुसलसल दौरे कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। महकमा ज़राअत पंजाब गंदम की दीगर फसलों की पैदावार के लिए कोशा हो गए। महकमा ज़राअत हारूनाबाद के ज़रिए एहतमाम पेस्टिसाइड डीलर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। डीलर्स को फसलों की पैदावार में इजाफे और फसलों पर हमलावर बीमारियों पर काबू पाने के हवाले से तरबियत दी गई। हारूनाबाद में महकमा ज़राअत के ज़रिए एहतमाम पेस्टिसाइड डीलर्स के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद। महकमा ज़राअत ने फसलों की पैदावार में इजाफा, फसलों पर हमला आवर कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों पर काबू पाने के हवाले से रहनुमाई की। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन रिजवान अमजद का कहना था कि साल में 2 मरतबा ट्रेनिंग का इनेकाद किया जाता है। ट्रेनिंग के जरिए पैदावार में इजाफा, हमला आवर बीमारियों पर काबू पाने के तरीके बताए जाते हैं। जी, ये ट्रेनिंग जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से हम हर साल 2 मरतबा करवाते हैं। और पहले मार्च अप्रैल में करवाई जाती है और दूसरा सेशन जो है अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट करवाते हैं। इस ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद ये है कि जो पेस्टिसाइड के डीलर बनना चाह रहे हैं, जो ज़रिए ज़राअत का कारोबार करना चाह रहे हैं, उनको महकमा ज़राअत जो है वो 15 दिन की ट्रेनिंग देता है, ताकि उन्हें जो है तमाम जो हमारी जो मेन फसलें हैं जिसमें गंदम, कपास और दीगर सब्जियात शामिल हैं, इसके हवाले से हम तमाम इनके जो कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के हवाले से आगाह करते हैं। ट्रेनिंग के शुरका का कहना था कि इस ट्रेनिंग के जरिए हमें खातिर ख्वाह मालूमात मिली हैं। ट्रेनिंग से फसलों पर हमले और बीमारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। रिजवान साहब ने हमें बहुत अच्छी तालीम दी है और इससे के लिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और ज़िम्मेदारों को बताने के लिए अद्वियात और जहरों वगैरह के मुतालिक बताया गया कि पंजाब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें ये इवेंट दिया कि हम इधर आगे ट्रेनिंग करें और हमें पेस्टिसाइड के मुतालिक पता चले। महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से इस किस्म की ट्रेनिंग अहसन इक़दाम है। ऐसी ट्रेनिंग्स पैदावार में इजाफा और हमला आवर बीमारियों से बचाव में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद।
मुल्तान में शहरियों ने सर्दियों का मजा दोबारा करने के लिए सूप पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी अपने अहलो अयाल के साथ सूप से लुत्फ अंदोज होने लगे। मुल्तान के शहरियों ने सर्दियां शुरू होते ही सूप पॉइंट्स का रुख कर लिया। रशीदाबाद का कदीम और मशहूर सूप खालिस अज्जा से तैयार किया जाता है। बच्चे बूढ़े जवान सभी मजे से इस सूप को पीते हैं। दिन भर के थके हुए शहरी रात के वक्त सूप पीकर अपनी थकावट उतारते हैं। सूप न सिर्फ सर्दियों का मशहूर तोहफा है बल्कि सेहत बख्श भी है। शहरी कहते हैं कि सर्दियां आते ही हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ का मशहूर सूप पीने आते हैं जो कि सेहत के लिए मुफीद है। सर्दियों की ये सौगात है, ये हम आती रहते हैं इधर पीने के लिए सूप। जिस्म के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना, ये सूप पीना चाहिए। हम तकरीबन हर वीकेंड पे या जब भी दिल करता है तो इधर आ जाते हैं और ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सूप होता है इनका जी। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ये फरमाइश करके हमें लेके आते हैं इधर कि जी हमें जो है ना रशीदाबाद पे लेके जाएं, सूप हमें पिलाएं। सूप पॉइंट के मालिक का कहना था कि हमारा कदीम कारोबार है, हम खालिस चीजों से सूप तैयार करते हैं जिसे शहरी बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छा सूप होता है, इधर खालिस चीजें डालते हैं हम और हमारे पास बहुत दूर दूर से गाहक आते हैं, हमारे पास हर रोज पीते हैं गाहक आके। यहाँ पे सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है, ये बहुत बेहतरीन चीज है ये। शहरियों की बड़ी तादाद दूर दूर से रशीदाबाद का मशहूर सूप पीने आती है। सूप जिस्म को हरारत पहुंचाने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरामैन शहाब के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।